Good morning, everyone. Good morning. Am I audible? Screen दिख Yes, रहा है ma'am. सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So today we will start with the second module of power electronics, which is phase controlled rectifiers or AC to DC converters. So AC to DC converters तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. Single phase half wave converter, single phase full wave converter in case of analog basic electronics, basic electrical, इन सब में तुम लोगों ने हाफ वेव फुल वेव कन्वर्टर बहुत बार पढ़ा होगा. सो हाफ वेव फुल वेव कन्वर्टर से तुमको इतना आइडिया है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं. एंड थोड़ा बहुत फ़िल्टर का भी आइडिया होगा कि आरसी फ़िल्टर, एलसी फ़िल्टर या आरएलसी फ़िल्टर लगा करके हम जो डीसी आता है उस डीसी को फ़िल्टर करके प्योर डीसी कन्वर्ट करना चाहते हैं. नाउ in power electronics we are discussing about phase controlled rectifiers. Okay. First of all, there is a lot of difference between what you have already studied and what you are going to study, because here instead of using a diode we are using a thyristor. ठीक है. Rectifier can be made up of diode also, can be made up of thyristor, MOSFET, GTO, किसी भी power semiconductor device का बना हुआ हो सकता है. It is like it is not a problem that if we use a diode instead of a rectifier, जो कि तुम लोगों ने already पढ़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में कि you use a diode to convert AC to DC signal, right? So using a diode you have already studied. Using a diode you have studied two types of rectifier. First is half wave rectifier and second is full wave rectifier. So what is the difference that you will have or that you will see here in this chapter phase control rectifier is that it was, again, as I have told many times, that diode is a uncontrolled device. Uncontrolled device. So whatever the output of this half wave or full wave rectifier was, जो भी इसका अगर हम AC से DC में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, DC में कन्वर्ट करते हैं, सो वी गेट एन एवरेज वैल्यू. ठीक है, मतलब एवरेज वैल्यू या वी एवरेज हमको DC में मिलता है. हियर वी हैव वी आर एम एस एंड आउटपुट में, इनपुट में वी आर एम एस है और आउटपुट में हमको वी एवरेज एंड वी आर एम एस दोनों ही मिलता है. लेट अस नाउ टॉक अबाउट वी एवरेज. तो ये जो भी आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है, दिस आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन केस ऑफ डायोड, विद द हेल्प ऑफ डायोड. इस आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए या बेटर रेक्टिफिकेशन के लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं कि हाँ, जो भी आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो बेटर रेक्टिफाई होकर के आए, उसमें से जो भी रिपल्स है वो फिल्टर आउट हो जाए. सो थोड़ा बहुत वी एवरेज वोल्टेज जो है उससे इम्प्रूव होता है. But not more than that cannot be done with the help of diode. More than that you cannot control with the help of diode. Whereas if you use a thyristor or a MOSFET or a GTO or a triac, all these devices are controlled devices जिसका on and off you can control by gate signal of the thyristor
और बेस सिग्नल ऑफ द बीजेटी और गेट सिग्नल ऑफ द मॉसफेट। तो इन जितने भी और पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जो तुम लोग ने ऑलरेडी अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, that you can control these devices by controlling the gate signal। इन डिवाइसेस को कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है, दिस इज अंडर योर कंट्रोल। So using this thyristors, how output voltage or DC output voltage can be modified or can be changed according to your application. This is the difference of this chapter that you have not studied in previous courses. Okay, so हाफ वेव फुल वेव पहले भी पढ़ा है, बट अब हम हाफ वेव फुल वेव विद रिस्पेक्ट टू थायरिस्टर पढ़ेंगे, विच विल चेंज योर आउटपुट एवरेज वोल्टेज, and you can control your output average voltage by controlling the gate signal of the thyristor. So this is the difference. So let us first see what is the classification of rectifiers. See, this chapter is very very important. Most of the questions in gate exam or पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मोस्टली इसी चैप्टर से आता है, बिकॉज दिस चैप्टर हैज़ एप्लीकेशन ओवर डीसी मशीन्स, ओवर सिंगल फेस एसी मशीन्स, ओवर 3 फेस एसी मशीन्स। तो ये चैप्टर का एप्लीकेशन सब जगह है, इसी वजह से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सी फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, एंड दिस चैप्टर हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, सो वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स पैरेलली। Let us first see what this chapter has to give you with the classification of rectifier. So first topic is classification of rectifier. Rectifier means AC to DC converter are called as rectifiers. So first type is where we convert, one second. Fixed AC to fixed DC. First kind is fixed AC to fixed DC which is controlled by a diode. अगर फिक्स्ड AC से फिक्स्ड DC में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर हम डायोड का यूज़ करते हैं। ये जो DC कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ नॉट वेरिएबल इन केस ऑफ अ डायोड, इसीलिए इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है। योर सेकेंड टाइप इज फिक्स्ड AC टू वेरिएबल DC। fixed AC signal to variable DC where V0 is variable. This can be done by full converter or half converter, and these are fully controlled rectifiers used by thyristors. Fully controlled rectifier used by thyristors. So this thyristors will help this V output to be variable, और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, बाय कंट्रोलिंग अल्फा एंगल, और इस अल्फा को बोलते हैं फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज फायरिंग एंगल, ऑल दीज थिंग्स विल बी टोल्ड टू यू। अभी बस याद रखो कि अल्फा को कंट्रोल करके या फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम
आउटपुट एवरेज वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं व्हेन यू आर यूजिंग अ थायरिस्टर फॉर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी. ठीक है. सेकेंड थर्ड टाइप इज फिक्स्ड एसी. ओके, सो लेटेस्ट इसी में मैंने हाफ वेव और फुल वेव दोनों कर दिया है, सो थर्ड टाइप का ज़रूरत नहीं है. ये अगर हाफ वेव होता है तो हाफ वेव कन्वर्टर को दो टाइप का, इस सेकेंड वाले का दो टाइप है. फर्स्ट इज हाफ वेव एंड सेकेंड इज फुल वेव. हाफ वेव कन्वर्टर हमारा वन क्वाड्रेंट ऑपरेशन दिखाता है और फुल वेव कन्वर्टर हमारा टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन दिखाता है. ठीक है. वॉट डज इट मीन, ये इसका क्या मतलब है, वाई आई एम सेइंग वन क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट, ये सारी चीज़ें बिकॉज दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा यू विल गेट टू नो कि क्या मतलब है वन क्वाड्रेंट का और टू क्वाड्रेंट का. क्वाड्रेंट तुमको पता है कि देर आर फोर क्वाड्रेंट्स and first quadrant means this quadrant, second is this, third is this and fourth is this. So when we say that half wave converter, so half wave converters operation is in the first quadrant and full wave converter operates in both these quadrants. ठीक है. कैसे होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन when we move with the chapter, move ahead with the chapter. ठीक है. Now I was talking about firing angle alpha. So what is firing angle alpha? Suppose this is your sinusoidal signal. Okay, and this is your thyristor for half wave circuit जिसको तुमने इस तरीके से कनेक्ट किया है. ठीक है. दिस इज़ योर थायरिस्टर, दिस इज़ योर एसी सिग्नल 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सपोज. So current is flowing like this through the load when this thyristor will be forward biased. So you have this gate and you have anode and cathode of the thyristor. So you know that कि जब ये thyristor forward biased होगा उस टाइम पे कंडक्ट करेगा, रिवर्स biased के टाइम पे ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा. राइट, यू नो ऑल दिस थिंग्स. नाउ इस थायरिस्टर को हम ऑन करते हैं गेट सिग्नल दे करके. ठीक है. नाउ दिस इंटायर टाइम पीरियड, सपोज ये इस सिग्नल का टाइम पीरियड 2 पाई है. एज यू कैन सी दैट द सिग्नल्स टाइम पीरियड इज 2 पाई, दिस इज पाई. ठीक है. सो फ्रॉम 0 to 2 पाई इस थायरिस्टर को एक इंटायर फ्रीक्वेंसी के लिए यू कैन टर्न ऑन एट एनी पोजिशन. ठीक है. इसको यहाँ भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ भी ऑन कर सकते हैं, एट एनी पोजिशन. ठीक है. सो दिस इंटायर साइनोसॉइडल सिग्नल, सपोज दिस इज योर इंटायर साइनोसॉइडल सिग्नल, तो इस पूरे फ्रीक्वेंसी के लिए एक टाइम पीरियड के लिए इस थायरिस्टर को हम किसी भी पोजीशन पे ऑन कर सकते हैं. दैट इज अंडर आवर कंट्रोल, दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द गेट टर्मिनल ऑफ द थायरिस्टर. ठीक है. हमको ऐसा जैसे कि डायोड में होता है कि डायोड यहीं पर ऑन हो जाता है एंड फॉर डायोड यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस. ठीक है. बट इन केस ऑफ थायरिस्टर दिस आउटपुट कैन बी कंट्रोल्ड और कहीं पर भी हम इसको ऑन कर सकते हैं. सपोज इफ वी आर ट्रिगरिंग द थायरिस्टर हियर, फायरिंग एंगल अगर हम यहाँ देते हैं यानी कि गेट को हम गेट करंट यहाँ देते हैं, IG की वैल्यू यहाँ देते हैं, IG को सप्लाई यहाँ देते हैं, तो नाउ द आउटपुट ऑफ दिस the output across the load will be like this. तो ये जो जितना ग्रीन पार्ट में दिखा रहे हो वही तुम्हारा आउटपुट होगा. ठीक है. दिस विल बी द आउटपुट फॉर थायरिस्टर. ये रेड वाला जो पोर्शन है ये हट जाएगा. सो दिस विल बी योर आउटपुट फॉर द थायरिस्टर. फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल,
For negative half cycle, your thyristor will be open circuited, so it will not conduct, it will be 0, and again it will conduct for next cycle. What is wrong with this? Okay, so 1 second. Let me select the pen first. I'm not being able to select the pen. Okay, so I was telling कि you can control the point at which you can fire this thyristor और उसको बोलते हैं firing angle. So suppose this is 30 degree from here, जैसे कि ये तुम्हारा 180 degree हो गया. So suppose if you are triggering this thyristor after 30 degree, so your alpha will be equal to 30 degree. So for each time period, your thyristor will be triggered after 30 degree. So कुछ इस तरीके का वेवफॉर्म तुमको मिलेगा. मैम जो गेट पल्स दे रहे हैं उसको 0 डिग्री पे ही नहीं दे सकते हैं और सेम वेव फॉर्म नहीं बना सकते हैं? नहीं बिल्कुल दे सकते हैं. इट इज़ अप टू यू. ठीक है, मैं सिर्फ ये डिफरेंस बिटवीन अ डायोड एंड अ थायरिस्टर बता रही हूँ. ठीक है, इट इज़ अप टू यू. यू कैन गिव द गेट पल्स एट 0 डिग्री, एट 1 डिग्री, एट 2 डिग्री, एट 20 डिग्री. इट इज़ टोटली अप टू यू कि तुम इसको गेट पल्स कहाँ देना चाहते हो. ठीक है, सो इट इज़ अप टू यू एंड यू कैन कंट्रोल दिस. इसीलिए यही हमारा बेनिफिट है ऑफ डायोड as compare of thyristor as compared to diode. ठीक है, so it is totally up to you. यहाँ पर 0 डिग्री पे अल्फ़ा कैन बी 0 डिग्री, अल्फ़ा कैन बी एनी डिग्री, अल्फ़ा कैन बी 270 डिग्री, अल्फ़ा कैन बी 360 डिग्री. अल्फ़ा जो है वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब फॉर वन टाइम पीरियड 360 डिग्री लेने से पूरा ही वेव फॉर्म 0 आएगा. सो इट इज़ नॉट वर्थ. सो फॉर वन टाइम पीरियड, जैसे कि ये इंटायर टाइम पीरियड है फॉर हाफ वेव साइकिल. सो इस टाइम पीरियड में अल्फ़ा कोई भी कहीं भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं और जहाँ भी इसको ट्रिगर करेंगे दैट विल बी योर फायरिंग एंगल. ठीक है, इट कैन बी 0 डिग्री, इट कैन बी 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है. इसीलिए इसी एंगल को बोलते हैं फायरिंग एंगल. ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस फायरिंग एंगल जब भी हम वी एवरेज निकालेंगे, दिस वी एवरेज विल बी इक्वल टू 1/2 पाई टोटल टाइम पीरियड. जहाँ से ये वेवफॉर्म शुरू होगा, सपोज इफ इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 30 डिग्री, तो जहाँ से ये वेवफॉर्म शुरू होगा और जहाँ तक जाएगा इसको वहीं तक इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, सो सपोज दिस इज़ 180 डिग्री, सो 30 to 180 डिग्री वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी. मैम और जब नेगेटिव में ट्रिगर करेंगे उस समय ये नीचे वाला ग्राफ किस तरह से बनेगा? ये नीचे वाला ग्राफ जब हम इसको नेगेटिव में ट्रिगर करेंगे, सो दैट विल बिकम योर फुल वेव रेक्टिफायर. राइट, अभी ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो अगर इसको हमको नेगेटिव हाफ साइकिल का भी आउटपुट चाहिए होगा तो उस टाइम पे हम इसको मैम फुल वेव हम पूछ रहे हैं कि अगर नेगेटिव में करेंगे तो ये नीचे वाला ग्राफ ये भी ऊपर में पहले जो डायोड में बनता था ऊपर ही बनता था, तो वो डायोड के फुल वेव वैसा ही के लिए बनेगा बनता ना? था ना. रिवर्स वाइज हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा. अभी ये मैं हाफ वेव का बात कर रही हूँ और तुम जो बात कर रहे हो वो नेगेटिव जो ऊपर बनता था, तुम इसकी बात कर रहे हो आई गेस. मतलब ऐसा जो वेव फॉर्म बनता था तुम इसकी बात कर रहे हो. राइट, यस मैम. तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म है.
ठीक है। मैम और एक मैंने क्वेश्चन। मैंने अभी हाफ वेव का सर्किट बनाया है, तो इस सर्किट के लिए तो ये नेगेटिव हाफ में ट्रिगर, इस नेगेटिव हाफ में ये कंडक्ट ही नहीं करेगा बिकॉज इट विल बी रिवर्स बायस्ड। जब सर्किट फुल वेव की होगी उस टाइम पे ये सेम चीज़ जो पॉजिटिव हाफ के लिए हो रहा है सेम चीज़ नेगेटिव हाफ के लिए भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ वी हैव अ फुल वेव रेक्टिफायर। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। मैम जो फायरिंग एंगल है सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए होता है या फिर उसको जब तक सप्लाई ऑन करेंगे वो नहीं, जब उसी। तक सप्लाई, जब उसका जो भी तुम फायरिंग एंगल, जब भी सी इफ़ यू हैव मैटलैब विद यू, तो ये मैटलैब में जाकर के टेस्ट कर सकते हो। थायरिस्टर सेलेक्ट करना, थायरिस्टर का पे डबल क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में अल्फ़ा सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा या फायरिंग एंगल सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। अब तुमने अगर 30 डिग्री सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये हर साइकिल में जितना भी टाइम पीरियड है, ये हर साइकिल में 30 डिग्री पे ट्रिगर होगा। ठीक है, जितना भी साइकिल है, सपोज दिस इज 2 साइकिल, तो हर साइकिल पे ये 30 डिग्री के बाद ऑन होगा, फिर इस साइकिल में भी 30 डिग्री के बाद ऑन होगा, नेक्स्ट साइकिल में भी 30 डिग्री के बाद ऑन होगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर ईच साइकिल, हर साइकिल के लिए। ठीक इससे है, मेरे सिस्टम को फायदा क्या हुआ मैम? तुम्हारे सिस्टम को ये फ़ायदा हो रहा है कि तुम ये जो एवरेज वोल्टेज निकालते हो, ये एक टाइम पीरियड के लिए निकालते हो। ठीक है, जी। तो ये जो एवरेज वोल्टेज है, देखो यहाँ पर ये कम हो गया। अगर तुम्हारा पूरा वेव फॉर्म होता, ठीक है, 0 टू 180 डिग्री वेव फॉर्म होता, तो ये इंटीग्रेट होता 0 टू 180 डिग्री के लिए, तो एरिया जो वेव फॉर्म का होता वो ज़्यादा होता। यस और नो? जी। एरिया ज़्यादा होता तो एवरेज वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, एरिया कम होगा तो एवरेज वैल्यू भी कम आएगी। ठीक है, सो बाय कंट्रोलिंग द एवरेज वैल्यू यू कैन कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज। इससे डायरेक्टली रिलेशन क्या है ये मैं बताती हूँ। सपोज इफ यू आर कंट्रोलिंग अ स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर, ठीक है, तो स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग द आर्मेचर वोल्टेज। यस और नो? जी याद मैम। आ रहा है कुछ? आर्मेचर वोल्टेज को अगर हम चेंज करते हैं, वैरी करते हैं, तो स्पीड चेंज कर सकते हैं डीसी मोटर का? कर सकते हैं ना? सो अगर हम ये रेक्टिफायर को आर्मेचर वोल्टेज का सर्किट जो होगा डीसी मशीन का, डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर का, अगर हम इस रेक्टिफायर को वहाँ लगा देते हैं, सो वी कैन वैरी द आर्मेचर वोल्टेज ऑफ द supply voltage of the DC machine, and by varying the armature voltage you can change the speed of the DC motor or you can control the speed of the DC motor. समझ में आ गया कि ऐसा क्यों करते हैं? What is the relation between this? Is एक it और clear? क्वेश्चन है मैम। हाँ पूछो। मैम जैसे स्टार्टिंग में 30 डिग्री पे अल्फा फायरिंग कर रहे हैं तो हाँ। क्या जैसे क्लोज हो रहा है मेरा साइकिल, फर्स्ट ऑफ द साइकिल 180 डिग्री पे, तो उसको जस्ट पहले बंद मैंने बंद होने से पहले भी उसको फायरिंग एंगल को क्लोज कर सकते हैं? मतलब नहीं, मैम जैसे कि सिर्फ मेरा पूरा सर मैंने 180 डिग्री नहीं चाहिए हमको वेवफॉर्म, सिर्फ हाँ, सर्टेन पीरियड ऑफ द मतलब 30 डिग्री तो से तो वो उसके बीच अल्फा, के बीच तो में वो चाहिए। गेट से कंट्रोल नहीं होगा, उसके लिए तुमको थायरिस्टर को ऑफ करना पड़ेगा। मैं समझ जी गई तुम्हारा क्वेश्चन कि देखो, जी। अगर सपोज इफ योर सिग्नल इज दिस और तुम इसको 30 डिग्री पे ऑन कर रहे हो और तुम हाँ इसको यहाँ ऑफ करना चाहते हो, जी जी मैम। ठीक है, तो तुम्हारा वेवफॉर्म कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, जी ये तुम कर सकते हो, पर एक बार तुमने थायरिस्टर को यहाँ पर ऑन कर दिया ना, इसके बाद गेट के पास कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, नो कंट्रोल। गेट के पास, गेट सिर्फ ऑन करने में मदद कर सकता है थायरिस्टर को, पर यहाँ पे तुमको क्या करना है, थायरिस्टर को ऑफ करना पड़ेगा, तब जा करके तुमको ऐसा वेव फॉर्म मिलेगा। और इस ऑफ करने के लिए ही कम्यूटेटर सर्किट लगाया जाता है। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ कम्यूटेशन, बट यू कैन नॉट डू इट विद द हेल्प ऑफ अ गेट सिग्नल। तो फायरिंग एंगल का वहाँ पर कोई रोल नहीं है, वहाँ पर कम्यूटेशन सर्किट का रोल आएगा, सो दैट यू कैन टर्न ऑफ द थायरिस्टर फोर्सफुली एट दिस पॉइंट। ठीक है, इज इट, जी एम आई क्लियर?
जी मैम। So this is what you are doing in case of thyristor as compared to diode. तो diode में हम सीधा सीधा पूरा waveform लेते थे for entire टाइम पीरियड, पूरा वेवफॉर्म होता था, तो हम इसीलिए डायोड को अनकंट्रोल्ड और फिक्स्ड डीसी बोल रहे हैं. Whereas in case of thyristor, whenever you are using a thyristor, you can control the DC signal by changing the firing angle. And now you know what does I mean by the firing angle. So firing angle is the angle at which you are providing gate signal to your thyristor. ठीक है, तो it can be firing angle can be any angle between the entire time period of the circuit. Okay. So next is dependence or classification of the converters on the basis of pulse number. Pulse का मतलब क्या होता है? Let us see. अभी हमने classification देखा with respect to fixed DC or variable DC. Now the same classification can be done with respect to pulse number based on pulse number. Let us say this pulse number is m. ठीक है. Now pulse number gives the number of output pulse for one cycle of AC source voltage. So suppose this is your AC source voltage, एक cycle, one cycle of your AC source voltage. इस one cycle के लिए if we are, how many pulses are we getting? तो जब one pulse converter होगा, so half wave converter is an example of one pulse converter where m is equal to 1. So suppose if alpha is equal to 0 degree, so you will get one pulse like this. एक cycle में, एक 2 pi के cycle में you are getting one pulse of pi length. ठीक है, हाफ लेंथ का एक पल्स मिल रहा है. वहीं पर अगर हम 2 पल्स की बात करें तो सेम साइकिल के लिए फॉर फुल वेव कन्वर्टर यू विल गेट 2 पल्स इन 2 पाई टाइम पीरियड. ठीक है, सो पल्स लेंथ इज गिवन बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय m. Here m is equal to 2, alpha is equal to 0. For single phase full wave rectifier. So ये सारा short form तुम लोग ध्यान रखो. We will talk in the terms of short form only. पूरा नहीं लिखूंगी मैं. So this is full wave rectifier. So 2 pi divided by 2 will give you pi. यानी pi is the pulse length of this 2 pulse converter. ये है हमारा 2 pulse converter. तो एक्चुअली ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार इन बुक जो है, क्योंकि हम अभी तक तुम लोग डायोड में सिर्फ सिंगल फेज के बारे में डिस्कस किए होंगे, बट अब हमको 3 फेज भी पढ़ना है. ठीक है, सिंगल फेज और 3 फेज, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर सिंगल फेज में भी पढ़ना है, 3 फेज में भी पढ़ना है. तो 3 फेज में हम जनरली पल्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्टर को डिनोट करते हैं, यानी 3 पल्स कन्वर्टर, 6 पल्स कन्वर्टर. क्वेश्चन में भी आएगा अगर तुमको, तो कई बार देखना कि हाफ वेव, फुल वेव, सिंगल फेज, 3 फेज नहीं लिखा रहता है, डायरेक्टली लिखा रहता है पल्स नंबर के फॉर्म में. तो तुमको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है. पल्स नंबर अगर लिखा है 1 पल्स कन्वर्टर, 2 पल्स कन्वर्टर, तो इसका क्या मतलब है. सो 1 पल्स कन्वर्टर इज योर सिंगल फेज हाफ वेव converter, 2 pulse converter is your single phase full converter. Then there is 3 pulse converter. 3 pulse converter, this denotes 3 phase half wave rectifier. For 3 phase half wave rectifier, the waveform starts from 30 degree. ठीक है, ये क्यों होता है, ये जब हम लोग 3 फेज में आएंगे वी विल डिस्कस इट. ठीक है, सो 30 डिग्री पे वेव फॉर्म स्टार्ट होता है. सो सपोज दिस इज योर पाई बाई 6. टोटल एंगल तुम्हारा 2 पाई है.
So between pi by 6 to 2 pi you will have 3 pulses, इसीलिए इसका नाम है 3 pulse converter. So pi by 6 से 5 pi by 6 तक, pi by 6 से 5 pi by 6 तक एक पल्स रहता है. 5 pi by 6 से 9 pi by 6 तक दूसरा पल्स रहेगा. मैम जो हम लोग पल्स देते हैं वो इसी ही रहता है ना? हाँ देखो, ये आउटपुट की बात कर रहे हैं हम लोग. दिस इज योर इनपुट. देते हम लोग ये है सिंगल फेस एसी सप्लाई फॉर सिंगल फेस. जैसे कि ये सिंगल फेस के लिए था फर्स्ट वाला. दिस वाज आल्सो फॉर सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर, बट दिस इज फॉर 3 फेस. तो 3 फेस में 3 फेस सप्लाई देंगे, 3 फेस एसी सप्लाई RYB. ठीक है. So this is between 9 pi by 6 to 13 pi by 6. So you have 3 pulses like this. Again here alpha is equal to 0. So pulse length for 3 pulse converter is, see I can understand ये वाला ये जो वेवफॉर्म है ये अभी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा होगा. जस्ट अभी इतना ही समझना है कि 3 पल्स कन्वर्टर में 2 पाई लेंथ के बीच में 3 पल्सेस रहते हैं. सी यू कैन सी कि 2 पाई में ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट 0 to पाई बाई 6 में जितना ये 2 पाई टू 13 पाई बाई 6 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही ये वेवफॉर्म है. सो दिस कैन बी कम्प्लीटेड फ्रॉम हियर. तो इस तरीके से 3 पल्स कंप्लीट होते हैं इन द एंटायर टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई. तो जब हम 3 फेस एसी भी देंगे तो उसमें एक फेस का टाइम पीरियड जो रहेगा वो तो 2 पाई ही रहेगा, राइट. तो उस एक फेस के लिए, सपोज आर फेस के लिए 2 पाई के इंटरवल में वी विल हैव 3 पल्सेस, जिसकी वजह से इसको 3 पल्स कन्वर्टर बोलते हैं. अब ये आता कैसे है ये हम लोग डिटेल में जब 3 फेस पढ़ेंगे I'll discuss it. We will draw the entire waveform of 3 phase और वहाँ से हम derive करेंगे कि कैसे आता है. ठीक है. So pulse length of 3 pulse converter is 2 pi divided by 3, that is equal to 120 degree. यानी कि this pulse length is 120 degree. For here this pulse length is 180 degree. ठीक है. सो पल्स लेंथ इस तरीके से डिसाइड करते हैं. इसी की तरीके से फोर्थ टाइप जो है हमारा पल्स कन्वर्टर है 6 पल्स कन्वर्टर. Six pulse converter is for 3 phase full wave rectifier, and for this in case of 6 pulse converter, the waveform starts from 60 degree and you will have 6 pulses in 2 pi length. ठीक है. So 6 pulses होने के लिए, suppose this is your pi, तो 3 पल्स पाई के पहले होंगे और 3 पल्स पाई के बाद होंगे. तो एक पल्स का पल्स लेंथ कितना होगा? एक पल्स का पल्स लेंथ 60 डिग्री होगा. 60 डिग्री होगा, राइट. सो 60 120 180 अगेन 60 120 मतलब 180 में प्लस करोगे तो यू विल गेट 360. So एक pulse will be of pulse length of 60 degree. So pulse length here will be equal to 2 pi divided by 6, that is pi by 3 or 60 degree. ठीक है. So you can see that अभी देखो वेवफॉर्म पे को नोटिस करना. अगर तुम फर्स्ट वेवफॉर्म से लेकर के 6 पल्स का वेवफॉर्म देखो तो can you see that the amount of ripples have already been decreased? यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पल्स है,
दिस इज योर सेकेंड पल्स, दिस इज योर थर्ड, ये पूरा नहीं है, नीचे तक नहीं है, ठीक है। दिस इज योर थर्ड 3 पल्स कन्वर्टर एंड दिस इज योर 6 पल्स कन्वर्टर। कैन यू सी दैट, कैन यू रियलाइज कि ये ऑलरेडी यू आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिपल्स इन द सर्किट, बिकॉज वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग AC to DC यू आर एक्सपेक्टिंग कि आउटपुट वेवफॉर्म इस तरीके का होगा, बट इस तरीके का नहीं होकर के आउटपुट वेवफॉर्म इस तरीके का होता है। तो व्हेन यू आर converting this waveform from this waveform to this waveform, can you see that the number of ripples are already decreasing? Yes or no? So as the number of pulses, as pulse number increases, ripple voltage decreases or harmonics in the circuit decreases. Harmonic decreases on AC DC। हाँ बोलो। ऊपर की तरफ ग्राफ शिफ्ट कैसे हो गया है? कौन सा? ये वाला? 4th नंबर। हाँ, ये वाला 3 पल्स वाला भी और 6 पल्स वाला भी। सी ये ऐसा कैसे आ रहा है, ये जब हम 3 फेज पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली वेवफॉर्म समझ में आएगा कि ये नीचे तक क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज बिफोर इट कैन गो टू 0 ये वापस से, बिकॉज इन 3 फेज वी हैव 3 फेज सिग्नल, ठीक है। तो RYB तीनों ही ट्रिगर होते हैं उसमें। यहाँ पे सिंगल फेस है इसलिए एक साइकिल के बाद ही दूसरा साइकिल ट्रिगर होता है, बट इन केस ऑफ RYB 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पे है, और 120 की डिग्री के फेज शिफ्ट में तीनों मतलब तीनों जो तुम्हारा RYB सिग्नल है, ऑल 3 RYB सिग्नल विल बी ट्रिगर्ड एट 0 डिग्री। तो उस जहाँ पर वो एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर तुम्हारा जो थायरिस्टर होता है वो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये साइकिल है वो नीचे तक नहीं आकर के यहीं पर वापस से ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। बहुत डिटेल में ये अभी इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज मैंने 3 फेज वेवफॉर्म नहीं बनाया है, वो जब हम लोग 3 फेज पढ़ेंगे उस टाइम पे। अभी बस तुमको इतना समझना है कि इंटायर 2 पीरियड में तुम्हारा अगर हम 6 पल्स कन्वर्टर यूज़ करते हैं तो 2 पाई पीरियड में 6 पल्सेस रहेंगे। अगर हम 3 पल्स कन्वर्टर यूज़ करते हैं तो 2 पाई पीरियड में 3 पल्स रहेंगे। अगर हम 2 कन्वर्टर यूज़ करते हैं तो 2 पाई पीरियड में 2 पल्स रहेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो। ये जो वेवफॉर्म है ये हम लोग 3 फेज वेवफॉर्म बनाएंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट पे कहाँ ट्रिगर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं समझाऊंगी। तो ये वेवफॉर्म तुमको अपने आप दिखने लगेगा कि ये तुम खुद ड्रॉ कर पाओगे कि ये वेवफॉर्म आउटपुट में कैसे आ रहा है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बट यू कैन अभी ये विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर सपोज तुमको याद होगा कि अगर हम इन केस ऑफ फुल वेव कन्वर्टर, अगर तुम्हारा एक फुल वेव कन्वर्टर है, इस तरीके का तुमको आउटपुट मिला है, और इस फुल वेव कन्वर्टर में तुमने अगर LC फिल्टर लगा दिया है, ठीक है, या C फिल्टर ही लगा दिया सपोज, तो ये C फिल्टर क्या करता है तुम्हारे आउटपुट को, आई एम नॉट बीइंग एबल टू चेंज, ठीक है, ये आउटपुट को तुम्हारा क्या करता है इस तरीके से फिल्टर आउट करता है, यानी ये यहाँ तक चार्जिंग टाइम लेगा, फिर डिस्चार्जिंग टाइम लेगा, फिर चार्जिंग टाइम लेगा, फिर डिस्चार्जिंग टाइम लेगा। तो तुम्हारा फिल्टर होने पे क्या होता है कि जो DC पोर्शन होता है इन केस ऑफ योर वेवफॉर्म, दैट DC पोर्शन इंक्रीजेज, और इसीलिए तुम किसी भी हाफ वेव या फुल वेव सर्किट में फिल्टर लगाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि तुमको एक्चुअली प्योर DC चाहिए था और तुमको DC विथ रिपल्स मिल रहा है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का वेवफॉर्म था, दीज वेवफॉर्म आर हैविंग रिपल्स, ठीक है। ये 0 होकर के वापस इंक्रीज हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर वापस इंक्रीज हो रहा है। सो टू डिक्रीज दिस रिपल्स वी कनेक्ट अ फिल्टर सर्किट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है इन केस ऑफ रेक्टिफायर,
इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिल्टर सर्किट, अगर हम सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर से 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर तक जाएंगे तो अपने आप ही ये जो रिपल्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं. यू कैन सी दैट दीज रिपल्स आर डिक्रीजिंग फ्रॉम द वेव फॉर्म. ठीक है, ये रिपल्स अपने आप कम हो रहे हैं और इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पल्सेस इन अ इंटायर टाइम पीरियड तो वी कैन से दैट द रिपल्स आर डिक्रीजिंग एंड द हार्मोनिक्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, पहले क्या था, इस पूरे टाइम पीरियड में सिर्फ एक पल्स था ऐसा. अब इस पूरे टाइम पीरियड में तुमने 3 पल्स, हाफ टाइम पीरियड में 3 पल्स लिए, अगेन फॉर दिस हाफ cycle you have again 3 pulse. So you are decreasing this amount of ripples. ये जो ज़ीरो हो रहा था इसको तुमने डिक्रीज कर दिया and you are getting almost a constant value for the AC signal you are giving. ठीक है, is it clear now? जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो क्लियर है कि रिपल्स कैसे डिक्रीज हो रहा है. ये अब तो शायद दिखना चाहिए कि अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर लेते तो हमारा सर्किट ऐसा होता. ठीक है, हमारा आउटपुट ऐसा होता. और अब अगर हम इसकी जगह 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर ले रहे हैं सिंगल फेज की जगह तो हमारा आउटपुट ऐसा है. तो बेसिकली यू आर डिक्रीजिंग द AC सिग्नल या AC हार्मोनिक्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आउटपुट सिग्नल. सी, तुम्हारा एक्चुअली दिस इज योर AC सिग्नल. देखो, दिस इज वेरी बेसिक ऑफ सिग्नल सिस्टम. आई शुडंट टीच यू दिस बट एनीवे दिस इज योर AC सिग्नल. ठीक है, ये हमारा DC नहीं है. दिस इज नॉट DC. DC शुड बी दिस. DC शुड बी दिस. बट व्हेन यू आर रेक्टिफाइंग यू आर गेटिंग दिस. सो दिस इज नॉट प्योर DC, राइट? ये प्योर DC नहीं है. दिस DC has DC प्लस हार्मोनिक्स इन इट. कोई भी ऐसा सिग्नल जो अपने फंडामेंटल सिग्नल से हट करके हो उसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक्स. ठीक है, जब हम AC टू DC रेक्टिफायर बना रहे हैं तो इसका फंडामेंटल क्या है? इसका फंडामेंटल सिग्नल है DC सिग्नल, प्योर DC सिग्नल. ठीक है, जिसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो. So frequency should be 0. So pure DC will be your fundamental output. But you are not getting pure DC. You are getting DC with harmonics, and this harmonic will have AC part in it. क्योंकि हम AC से DC में convert कर रहे हैं ना, so this AC will have some harmonics because of this AC signal. और इसी हार्मोनिक की वजह से there are some disadvantages of power electronics. So harmonics are the biggest disadvantages. Presence of harmonics are the biggest disadvantages of power electronics because we are being able to apply it, we are being able to control everything with the help of power electronics. But this harmonics will cause problem in the circuit and it will derate your circuit. डिरेट मतलब क्या? ये हार्मोनिक जो है वो कोई भी यूजफुल वर्क या यूजफुल पावर नहीं दे पाता है. ठीक है, एनी हार्मोनिक प्रेजेंट इन द सिस्टम विल नॉट गिव यू एनी एक्टिव पावर, एनी यूजफुल एक्टिव पावर. ठीक है, ये कोई भी लोड को ड्रॉ करने में ये हार्मोनिक हेल्प नहीं करेगा. इट विल जस्ट हीट योर वाइंडिंग्स एंड इट विल डीरेट योर मशीन. मतलब मशीन अगर मान लो 20 किलोवाट की है तो बिकॉज ऑफ excess of heating of the winding due to harmonics you can use only 15 kilowatt of power from the machine और बाकी जो power है suppose it is wasted in the heating of the windings of the machine because of this harmonics. ठीक है, तो the most important part of power electronics is to remove this unwanted signal or unwanted harmonics which is present with the signal. Similarly in case of inverters, ये तो हो गया कन्वर्टर में हम AC टू DC कन्वर्ट कर रहे हैं. तो मैंने बोला कि AC सिग्नल दे रहे हैं हम तो हमको DC प्योर नहीं मिल रहा है. ठीक है, इस तरीके का DC मिल रहा है विच इज नॉट प्योर DC. ठीक है, उसी तरीके से जब हम इन्वर्टर देखेंगे in some chapter we have inverter also तो वहाँ पर हम DC to AC कन्वर्ट करेंगे. ठीक है,
तो वहाँ पे भी तुम देखोगे कि तुमको डीसी इस तरीके का मिल रहा है, सॉरी एसी इस तरीके का मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम डीसी सिग्नल दे रहे हो तो ऑब्वियसली ये साइनोसॉइडल तो नहीं हो जाएगा, तुमने एक फिक्स डीसी दिया है तो ये साइनोसॉइडल तो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, सो यू आर कन्वर्टिंग इट लाइक दिस, ठीक है। होना कैसा चाहिए था, होना ऐसा चाहिए था, pure sinusoidal with fundamental frequency, your waveform should be like this जो dotted मैंने बनाया, but you will get the output like this। तो then the efforts have been made कि इसको इस DC को हम साइनोसॉइडल से कैसे मिलाएं, कैसे क्लोज कर सके कि ये साइनोसॉइडल की तरह दिखे, सो दैट योर हार्मोनिक्स इज रिमूव्ड, ठीक है। ये जितना भी फ्लिकरिंग वगैरह तुम लोग ट्रेन की सर्किट्स में देखते हो वेयर देयर इज अ कन्वर्टेड एसी सिग्नल, जितनी भी फ्लिकरिंग स्क्रीन की होती है, दिस ऑल दिस फ्लिकरिंग इज बिकॉज ऑफ द नॉट प्योर फॉर्म ऑफ एसी और डीसी प्रेजेंट इन द कन्वर्टर्स। या अगर तुमने देखा होगा वेन एवर तुम्हारे घर की अगर सप्लाई चली जाए एंड यू आर यूजिंग योर फैन विथ इन्वर्टर, तो देख फैन में एक अलग सा आवाज़ आता है, यू कैन फील कि वो आवाज़ जो है वो नॉर्मल सप्लाई के टाइम पे नहीं होता, एक हमिंग आवाज़ रहेगा, जो कि जब इन्वर्टर से तुम यूज़ करोगे फ़ैन को तो वो आवाज़ तुमको सुनाई देगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक्स विच इज़ प्रेजेंट इन द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एसी और डीसी सिग्नल, ठीक है। इन्वर्टर भी तुम्हारा क्या करे, जो स्टोर्ड बैटरी है डीसी, सॉरी, छुट्टी दी मैम, अभी लैब है अभी। अच्छा ठीक है मैं ख़त्म कर रही हूँ। सो बेसिकली these are some problems of converters or power electronics which we have to remove or which we have to minimize when we are uh, designing any converter or designing any inverter। तो इस entire चैप्टर में हम लोग एक के बाद जब दूसरा कन्वर्टर पढ़ेंगे तो हम हर पर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालेंगे, तो ये तुमको दिखेगा आगे कि कैसे कैसे THD जो है हमारा वो कम होता जाएगा, एक कन्वर्टर से दूसरा कन्वर्टर जब हम डिज़ाइन करेंगे तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर। इफ़ यू हैव योर लैब आई एंड द क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी आफ्टर दिस। टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। मैम हार्मोनिक्स को थोड़ा अगले क्लास में डिटेल में डिस्कस कर दें। हाँ, अरे अभी तो बहुत कुछ हार्मोनिक एनालिसिस ही पूरा डिस्कस करना है दोनों डीसी फॉर्म में, तो वो सब अभी आगे आएगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस पार्ट का, इस सेकेंड मॉड्यूल का, बिकॉज तुम लोग के मिड सेमेस्टर्स भी है एंड आई वांट टू गिव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकेंड मॉड्यूल एज वेल, तो इसलिए इसको शुरू करना ज़रूरी था। सो ओके, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। Okay, thank you everyone.